السلام علیکم. آج ہم راجہ آزاد خان کے ساتھ ان کی سائٹ چکری روڈ پہ جا رہے ہیں. آج کا دن ہم راجہ آزاد خان کے ساتھ ان کی سائٹ پہ گزاریں گے. سب سے پہلے السلام علیکم راجہ آزاد خان صاحب. آپ نے یہ چکری روڈ کو ہی آپ نے ادھر ہی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کا آغاز کیوں کیا ہے؟ کیا سوچ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا آغاز اس لیے کیا کہ یہاں پہ زمینیں باقی جگہوں سے رعایت مل رہی تھی اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنا تھا. آسان ایک ساتھ پہ ان کو پلاٹ دیے میں نے 300 روپیہ ماہانہ قسط پہ. 25 سال ہو گئے ہیں اور وہ جو رعایت میں نے دی ہے وہ اس سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا اور آئے روز جھگڑے قبضے اس میں پھنس گیا اور لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ آ رہے نہیں آ رہے، جائیں گے نہیں آئیں گے، ان کا کیا پروگرام ہے. ان کے پاس اور مزید پیسے ہوتے نہیں ہیں تو وہ کچھ بنا بھی نہیں سکتے. اور ہمارے ملک کا ایک قبضہ مافیا ہے. اپنے علاقوں میں جہاں جہاں نئی آبادیاں بستی ہیں وہاں پہ وہ تھوڑے لوگ جن کا کوئی روزگار نہیں ہوتا وہ اٹھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ باہر سے آ رہا ہے، وہ یہاں پہ کوئی تعمیری کام شروع کرنے والا ہے، ترقی کا کام شروع کرنے والا ہے. وہ پھر اپنا ایک پروگرام بنا لیتے ہیں، دو چار مل کر بندے، تاکہ ہمیں یہاں پہ بیٹھنے سے ہمیں کچھ نہ کچھ وہاں سے مل جائے گا. تو ایسے میں یہ سوسائٹیاں جو ہیں کم آمدنی والے لوگوں کی یہ کوئی فروٹفل ثابت نہیں ہو سکی ہیں، تو اس لیے میں یہاں اس طرف آیا ہوں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں چکری کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر چکر دینے میں ان کی زیادہ مثال دی جاتی ہے. تو آپ نے ان لوگوں کو کیسا پایا؟ کیا تجربہ تھا آپ کا یہاں کے لوگوں کے بارے میں؟ ویسے ہر معاشرے میں، ہر جگہ، ہر علاقے میں یہ لوگ اچھے برے دونوں ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بریائی والے، جبر کرنے والے، وہ کم ہوتے ہیں. مگر وہ علاقہ بدنام ہو جاتا ان تھوڑے لوگوں کی وجہ سے. تو آدمی خود بھی ہوشیار ہو تو اتنا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسا کوئی کسی کو منہ میں نہیں ڈال سکتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اعتماد میں تو سارے نظام چلتے ہیں. اعتماد میں لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، مگر ان کا اعتماد بعض اوقات ضائع ہو جاتا ہے ان کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ بھی ہیں کیونکہ دنیا قائم ہے. اگر اچھے نہ ہوں تو دنیا قائم نہیں ہو سکتی ہے. ساری اگر برے تو یہ ہر جگہ ہے. اچھا راج صاحب، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کا قیام بھی ہو رہا ہے. یہ بڑی خوبصورت جگہ لگ رہی ہے اور بڑا ڈیولپڈ ایریا ہے، تو بہت اچھی جگہ پہ آپ نے وہ کیا ہے. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آئیں اور آپ بھی ان کو بتائیں کہ یہ کس طرح سے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ موٹر میں بھی اس کے ساتھ ساتھ بالکل ٹچ ہو رہا ہے. یہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی بڑی خوبصورت جگہ کو ٹچ کر رہی ہے. اس کو تو آپ کو اچھے ریٹس پہ لوگوں کو دینا چاہیے اور لوگوں کو ان ساری یونیورسٹی ہے، ہاسپٹل ہے، لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے ان سب چیزوں. آج بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. تو اس کا میں جواب ایسے ہی دوں گا جیسے حالات ہے. چونکہ 35 سال پہلے جب میں یہاں آیا تو یہاں پہ کوئی یونیورسٹی کا نام و نشان نہیں تھا، نہ کوئی پروگرام تھا، نہ کوئی اسکیچ میں تھا. اور موٹر وے بھی میری موجودگی میں بنی ہے، بلکہ موٹر وے پہ جتنا پتھر لگا یہ تقریباً میرے ان پہاڑیوں سے توڑ کے لے گئے. تو ملک کے اندر تعمیر و ترقی ہوتی رہتی ہے. اگر جمہوریت قائم ہو، ڈیموکریٹک حکومت ہو تو یہ پارٹس بائی پارٹس، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی ہوا ہے. موٹر وے بن گئی ہے، منڈیاں بن رہی ہیں، یونیورسٹی آ گئی ہے، کل اور کوئی ادارے آ جائیں گے. کیونکہ زمین تو ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے، آبادی بڑھتی ہے. تو یہ شہر کے بالکل نزدیک ہے. پنڈی چونکہ GHQ ہے، مرکز ہے، صدر مقام ہے، اور اس نے آبادی نے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے ارد گرد جو علاقے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی بڑی دیر ہوئی ہے.
जी जी। और जैसे मुल्क ने तरक्की की है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ ये कुछ भी नहीं हुआ, नमक आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, मगर फिर भी शुक्र है अल्लाह का जो कि ना होने से कुछ ना कुछ बेहतर हुआ है और आइंदा भी होता रहेगा। चलिए राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपके साथ आपकी हाउसिंग सोसाइटी पे भी जाते हैं, अभी वहाँ का भी विजिट करते हैं। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपके इस मकसद में आपको कामयाब करें, आपने जो भी सोच के शुरू किया है। शुक्रिया। जी, जैसा कि नाजरीन हम राजा आज़ाद खान के साथ उनकी ज़मीन पर आ रहे थे, अभी हम उनकी साइट पर पहुंच चुके हैं और ये सारी उनकी साइट है। ये अभी हम राजा आज़ाद खान साहब से पूछेंगे कि हमने ये जो इन्होंने इधर ज़मीन ली है, ये इन्होंने किस मकसद के लिए, इनका मेन मकसद क्या है इस ज़मीन को लेने का और ज़मीन को फरोख्त करने का। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि आज से कोई 30-35 साल पहले ये जगह मैंने राजा साजिद नामी शख्स से यहाँ ख़रीदी थी और ये गाड़ा वगैरह डाला था, कुछ बनाने का प्रोग्राम था। यहाँ कोई फार्म हाउसेस बनाने थे, पोल्ट्री फार्म हो और डेयरी फार्म हो, तो अभी भी मेरा यही प्रोग्राम है, इरादा है। मैं आज देखने के लिए इसलिए आया था कि यहाँ मैंने कुछ दिन पहले ट्रैक्टर भेजा था कि भाई एक रोड बना लें, मगर रोड नहीं बनी है। चूँकि इस इलाके में अब मौसर तरीन बंदा राजा साजिद हैं, वो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, तो आबादी चूँकि रावलपिंडी इस्लामाबाद की बहुत नज़दीक है और बढ़ रही है दिन ब दिन, और ईटेबल आइटमों का भी कमी महसूस होती है। अगर मुल्तान से या सरगोदे से दूध अंडे वगैरह ना आए तो पिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक मुश्किलात पैदा हो सकती है। तो साथ साथ आबादी के हम अगर खुराक की कमी को भी पूरा करने का प्रोग्राम बनाएं तो एक तो रियायत पड़ेगी और दूसरा नज़दीक होगी और तीसरा ताज़ा तरीन होगी। तो इसका मेरा इरादा ये है कि मैं यहाँ कोई डेयरी फार्म का प्रोग्राम बना रहा हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इसमें काम शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने पहले कहा था इधर कब्ज़ा माफिया बहुत होते हैं, तो आपने कोई कोशिश की है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, कोई खड़े हुए हैं आप? हाँ, कोई 86-87 में कुछ बंदे शेख इफ्तिखार वाल मुख्तार वो मेरे दफ्तर में ही बैठ के कोई प्लाट वगैरह बुक करते थे और मेरा ही टाउन था गुलशन कश्मीर के नाम से। तो वो बहुत बढ़ गए, वो इतने बढ़ गए हैं कि कब्ज़े कर के 10 कनाल ज़मीन ख़रीदते हैं और सालम हिस्सा लिख लेते हैं उस ज़मींदार का जो भी होता है, और सालम हिस्से में जो कुछ निकलता है वो भी बना लेते हैं, और 10 लेते हैं तो 100 बना लेते हैं। उनका तो यही मसला है। काम उन्होंने मेरे दफ्तर में ही सीखा, मुझसे ही सीखा, मगर वो मुझसे कोई 200 गुना आगे हैं। तो मैं अपनी जगह पे ही बैठा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस आदमी से 100 कनाल ज़मीन ली है, मुझे 90 ही अगर मिल जाए तो बहुत है। मैं उसी पे कनात पसंद आदमी हूँ और मैं उसी पे शुक्रगुज़ार हूँ कि चलो इलाके का किसी का हक भी ना मारा जाए और मेरा भी सिलसिला चलता रहे बाइज़्ज़त तरीके से। मगर बाज़ लोग ये ऐसे होते हैं कि उनके सालम हिस्से डाल के उनके हकूक़ के शामलात ये वो दीगर तमाम हकूक़ डाल के तो वो अपनी ज़मीनें खूब बढ़ा लेते हैं, फिर वो बड़े महंगे दामों बेचते हैं। तो वो भी एक कब्ज़ा माफिया है मेरे इर्द गिर्द। मेरा जो प्रोग्राम था सियासी हवाले से और समाजी हवाले से और तामीर व तरक्की के हवाले से जो मेरा ज़हन था वो सारा उन्होंने मऊफ़ कर दिया, इसलिए कि कभी रास्ते बंद कर देते हैं, कभी मेरे रास्ते में ज़मीन ख़रीद लेते हैं, कभी खड्डे खोद देते हैं, कभी बैरियर लगा देते हैं, कभी बंदे बैठा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। छुट्टियों वाले दिन रातों रात बुलडोज़र चला देते हैं। उनका एक है, उनके ख़िलाफ़ मैंने कोई मुकदमा भी जीता हुआ 80 करोड़ रुपए का, और उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हैं जिसमें 4 दफ़ात हैं, 420, 471, 467, 468, जिनकी सज़ा बनती है 28 साल। तो भागे हुए हैं मुकदमे में। पुलिस वालों को पास जाता हूँ, पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो उनका रेट हाई है,
पुलिस तो कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। हाई कोर्ट तक भी गया हूँ। अब मैंने प्राइम मिनिस्टर सेल में भी मैंने शिकायत दर्ज की हुई है। मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं से इंसाफ मिलेगा। मगर मेरी ज़िंदगी के तमाम वो जो सोचें थी, जो मैं करना चाह रहा था, वो इन्होंने ख़त्म कर दी। मेरी सोच क्या थी, आज से 40 साल पहले, मैं चूँकि इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो इस्लामाबाद में ना बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलता था। किसी आदमी के लड़ाई झगड़े में अगर किसी जेल चला गया या कहीं और जगह चला गया तो उसका ज़ामन कोई नहीं होता है। कहीं महकमाना कर्ज नहीं मिलता था, और बहुत सी और चीज़ें सोचकर तो मैंने ये 300 रुपया माहाना पे लोगों को 5 मरले के प्लाट का मालिक बनाना चाह रहा था, ताकि एक बस्ती हो, लोग वहाँ पे आबाद हों और वहाँ पे उनका एक अपना निज़ाम हो जैसे दुनिया आबाद होती है। मगर मेरी खुशकिस्मती ये है कि वो मेरे किसी जगह पे ऐसे लोग नहीं आए। मैं तो 300 ले रहा था, 300 माहाना किस्त पे, जब जहाँ पे 30,000 रुपये माहाना किस्त है, जहाँ 30 लाख रुपए है, वो लोगों ने खुशी से लिए। बहुत से टाउन जो हैं मेरा देखा देखी बने। बैरिया टाउन तो बहुत बाद में आया मेरे बाद। पिंडी इस्लामाबाद में टाउन नाम की चीज़ कोई नहीं थी, और मैं खुद ये इसकी पैमाइश करता था, सड़क का डिज़ाइन बनाता था। 7 बंदे रखे होते थे, पैमाइश करो, इधर सड़क बनाएं, इधर स्कूल होना चाहिए, इधर मस्जिद होनी चाहिए, इधर छोटा बाज़ार होना चाहिए। मेरे जहन में चूँकि बाहर का भी नक्शे थे, अपने इस्लामाबाद का भी था आइडिया, तो मैं देता था और उसमें मैं काफ़ी कामयाब हुआ। मगर लोगों के ना आने की वजह से, सस्ती ज़मीनें ख़रीदने की वजह से मैं नाकाम हो गया, और उस पर ये कब्ज़ा करने वाले माफिया जो है उसमें काबिज़ होते रहे। राजा साहब खान, आज भी मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो धरती है, ये सोना उग रही है, सोना। मगर खाने वाले जो है ना, वो काट के नहीं खा रहे, वो कहते हैं इसको तोड़ के खा लो ताकि दोबारा पैदा ना हो, जो कोई मिलना है हमें मिले, दूसरे किसी को ना मिले। ऐसा हमारी सोसाइटी है, माशरा। ये नहीं सोचता कि कल और भी किसी ने आना है। यहाँ ऐसे काम करके जाने चाहिए जो तारीख में लिखे जाएं कि किसकी आबादी क्या है। कोहाट में एक राजपूत था, आज से 5000 साल पहले, उसने कोहाट के नाम से एक बस्ती कायम की है। वो आज कोहाट है, सुबह सरहद में, सुबह पख्तूनख्वा में है। तो वो भी उसका भी डिज़ाइन, वो कोई माइंड हुआ होगा लोगों को आबाद करने का, लोगों को किस तरीके से आबाद करे। तो ऐसे ही मैंने भी पढ़ा, आगे पीछे से किताबें पढ़ी हैं, तारीख़ पढ़ी है, तो मैंने भी सोचा कि ऐसे मुझे भी करना चाहिए, ताकि कोई लिखा जाए, कोई पढ़ा जाए, कोई बोला जाए कहीं ना कहीं। मगर यूँ चूँकि मैं एक ऐसी सोसाइटी में आ गया हूँ कि जहाँ आए दिन मिनट के बाद फ्रॉड, धोखा, बस यही है। तो फिर भी मैं हौसला इंशाल्लाह नहीं आता, मैं करूँगा कोई काम ऐसा जो मेरे बस में हुआ। अगर ये अदारे मुझे साथ दे दें, अदारे क्या होते हैं, ये महकमा माल होता है, अदलिया होती है, पुलिस होती है, यही साथ दे दें तो मैं यहाँ बहुत काम कर सकता हूँ। बल्कि एक चौकीदार मेरा होता था, जहांगीर नामी बंदा था मेरी टाउन के सामने, तो मैंने कहीं से गाड़ी ख़रीद कर लाया 1.5 लाख रुपए की। ऐसा है कि चूँकि ये ज़िंदगी की दास्तान तो बहुत बड़ी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में अपनी सारी बातचीत करता रहूँगा थोड़ी थोड़ी। अब मैं आप सब हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।